یتیم بچوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری. پاکستان سویٹ ہوم اور صدیق پبلک اسکول راشد چیمہ صاحب کا مشترکہ پروجیکٹ پاکستان سویٹ ہوم پری کیڈٹ کالج H9 کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں. داخلوں کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے. 10 فروری تک، یہ جو آنے والی 10 فروری ہے، اس تک جتنے بھی یتیم بچیاں اور بچے یا ان کے لواحقین میری آواز سن رہے ہیں، وہ اپنی رجسٹریشن، جو بچے 12 اور 14 سال کے ہیں، 8ویں کلاس میں ان کا ایڈمیشن ہے، وہ رجسٹریشن تھرو ویب سائٹ درج ذیل فون نمبروں پہ معلومات حاصل کر کے، یا جو بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور پاکستان سویٹ ہوم تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے فارم جمع کروا سکتے ہیں، تو 10 فروری تک انشاءاللہ ہم 30 سینٹر بنائیں گے پورے پاکستان میں، 4 صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت میں، جہاں ان بچیوں اور بچوں کے امتحان ہوتے ہیں. انہیں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے بچوں کا ہی صدقہ دے دیں اس کو شیئر کرنے میں، تاکہ میں جو میری خواہش ہے کہ میں ہر اس بچی اور بچے تک، چاہے وہ کسی گاؤں میں، محلے میں، دور دراز موجود ہے، اس تک میرا یہ میسج جائے اور وہ پاکستان سویٹ ہوم پری کیڈٹ کالج کا حصہ بن سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے. ہم نے کیڈٹ کالج H9 میں اپلیکیشن حاصل کی تھی کیڈٹ کالج سواوا کے لیے. اس میں 1250 بچے اپیئر ہوئے تھے پورے پاکستان میں. جنہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا ان میں سے تقریباً 90 کے قریب بچے سلیکٹ ہوئے پورے پاکستان سے، جو آج FSC کر رہے ہیں کیڈٹ کالج سواوا کے اندر. جی پاکستان سویٹ ہوم کا بھی بڑا کیڈٹ کالج ایک ہی ہے جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے. وہ بالکل گجر خان اور سواوا کے سنگم میں موجود ہے، جہاں ہمارے میٹرک کے بعد بیٹے اور بیٹیاں جا رہے ہیں. اور یہ جو آج ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ H9 سینٹر جو ہمارا ہے پری کیڈٹ کالج، ہم یہی بنانے جا رہے ہیں. یہ بچے میٹرک تک یہاں پڑھیں گے، پھر یہ شفٹ ہو کے انشاءاللہ بڑے کیڈٹ کالج سواوا کے اندر چلے جائیں گے. پراپر کلاسز انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ اپریل کی فرسٹ ویک میں ریگولر کلاسز صدیق پبلک اسکول کے ساتھ ان کی شروع ہو جائیں گی. جو بھی بچیاں اور بچے سلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو یہاں بلا کے ان کا انٹرویو بھی ہوگا، اور اپریل کے اندر ان کی کلاسز صدیق پبلک اسکول میں شروع ہو جائیں گی. کیڈٹ کالج جو ہے وہاں پہ 150 بچے ہمارے موجود ہیں وہاں پہ گجر خان کے اندر. لیکن یہ جو کیڈٹ کالج بننے جا رہا ہے اس کے اندر انلمیٹڈ سیٹیں ہیں. جتنے بھی بچیاں اور بچے جو 12 اور 14 سال کے ہیں، جنہوں نے ایگزام دینا ہے 7ویں کلاس کا، اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچے اسی سیٹ اپ میں رہیں گے. اور صدیق پبلک اسکول جو 6 فلور پہ ہے، جہاں پہ آلریڈی یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم وہاں پہ حاصل کریں گے اور یہاں وہ رہیں گے. ان کا ریزیڈینشیل ہاسٹل ہوگا. یہاں کل تعداد بتا رہے ہیں جو بچہ اس وقت ہمارا ماشاءاللہ جو بڑا سیٹ اپ ہے وہ سکر کے اندر بھی موجود ہے، بلوال کے اندر موجود ہے. اسی طرح یہ جو سیٹ اپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ کچھ 400 ہمارے بیٹے اور 100 بیٹیاں موجود ہیں. کراچی کے اندر سیٹ اپ موجود ہے. لیکن میری تو خواہش ہے کہ میں پورے پاکستان میں ہر ڈویژن کے اندر پاکستان کی ٹیم بناؤں، لیکن اس کے لیے مجھے ظاہر ہے آپ جیسے دوستوں کی اور مخیر حضرات کی ضرورت ہے تاکہ میں ہر ڈویژن کے اندر پاکستان سویٹ ہوم بنا سکوں. عمر خان صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پہ آپ نے بنایا ہے، اسی حوالے سے میں تو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں جیسے کہ پکر اور لیا کی اگر بات کروں، ملتان کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ آپ کا سینٹر ہے، کیا ان ایریاز میں، کیونکہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، غریب لوگ بہت زیادہ، اور خاص طور پہ اس طرح کے جو بچے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مطلب ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے؟ یا دیکھیں جی، میرے پاس تو بہت بڑے آئیڈیاز ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بہت سارے لوگ جن کے پاس جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں تو پہلے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں ہر ڈویژن کے اندر پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج بنانا چاہتا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ کوئی روایتی قسم کا یتیم خانہ نہیں ہے. آپ ضرور میرے بیٹوں سے ملیں جو اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں موجود ہیں، اور میڈیا کے بہت سارے میرے دوست اس بات کا گواہ ہیں جو 10-11 سال پہلے بھی آتے تھے جب وہ بچے چھوٹے چھوٹے آئے، اور ماشاءاللہ انہوں نے میٹرک کے اندر بھی A+ پوزیشن لی، اور اب FSC کے اندر بھی انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ 90+ نمبر لے گئے. بہت سارے بچے 98 والے نمبر والے بھی ہیں. اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ قائدین بننے کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی میں جانے کے لیے
कितनी दगदो करनी पड़ती है, लेकिन आज माशाल्लाह मेरे बेटों और बेटियों ने ये चैलेंज कबूल किया और वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरी आपसे अपील है, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो इन बच्चों पे है जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं। आज कितने सालों बाद फिर दहशतगर्दी का जो एक म्यार है फिर ऊपर होता जा रहा है। आज देखिए बम ब्लास्ट, और उसके अंदर जो बच्चे यूज़ होते हैं, वो अगर आप इस पर स्टडी करें तो सारे वही बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं होते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करने का एक ही इलाज है कि जितने भी हमारे ये बेटे और बेटियाँ जिनके वालिदैन इस दुनिया के अंदर नहीं हैं, हम इनका सहारा बने और इनको बेहतरीन तालीम और तरबियत दे सकें इंशाअल्लाह। देखिए जी, अभी खाने के अंदर जो है ना, आपको मेरे बेटे पीछे खड़े हुए हैं जो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं, जिनको आप पहले भी बहुत टाइम मिल चुके हैं, आज से 10-11 साल पहले जब ये स्पोर्ट्स टेम्परेस्ट को आप मिलते थे, आप इनसे पता करें। और माशाल्लाह ये डिफरेंट फील्ड के अंदर है, इनका बहुत सारों का शौक है कि हम फोर्सेस में जाएं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये मेरे बेटे हैं और इंशाल्लाह इनमें से आपको मेरी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। ये बिल्कुल ओपन है इनके लिए। बेटियां भी मेरे मुख्तलिफ शोबों में जाएंगी और बेटे भी। लेकिन आज की जो मैंने सदा लगाई है, इस सदा को आपने ज़रूर, क्योंकि इस वक्त तो बड़े थोड़े से बेटे और बेटियां हैं, इतनी बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी ऑफर कि पाकिस्तान में 12 और 14 साल के जितने भी बच्चियां और बच्चे हैं वो प्री कैडेट कॉलेज H9 का हिस्सा बन सकते हैं। सदीक पब्लिक स्कूल और पाकिस्तान स्वीट होम का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इस सदा को आखिरी कोने तक लेके जाएं ताकि 10 तारीख को लाखों बच्चे इसके अंदर आए। और ये खुली ऑफर है कि जितने भी बच्चे हमारे म्यार पे, हमारा म्यार क्या है, उसका यतीम होना, उसकी एज और क्वालिफिकेशन बराबर होना, फिर आगे टोटल फ्री है उनके लिए 5 साल नहीं, बल्कि कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ज़ुमरत खान साहब, ये बच्चे आपके पास कब तक रहेंगे? बाबा मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, टिल टू मैरिज, टिल टू सर्विसेज, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह आज का जो मैसेज है ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत बड़े बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे और इस वीडियो को आपने ज़रूर याद रखना, इसको भूलना नहीं। खान साहब अगर कांटेक्ट नंबर थोड़ा बोल दे तो वो भी आ जाए, कोई वेबसाइट है? देखिए वो तो पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। हेल्थ सेंटर, ये डेस्क, कोई इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया गया है मरकजी, ताकि लोग आए मालूमात ले सकें? देखिए इस वक्त पाकिस्तान स्वीट होम की जितने भी हमारे लोग हैं, बेटे बेटियां और हमारे सर्विस करने वाले, सारे इस शोबे में लगे हुए हैं। पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट पे बच्चे जा सकते हैं, जो आपको हम मुहैया कर रहे हैं, दर्ज झैल नंबर, आप वो भी चलाएं। इंफॉर्मेशन उनको, बच्चों को और बच्चियों को उन नंबरों से भी मिल सकती है। तो जितने भी ऐसे बच्चे और बहुत सारे बच्चियाँ और बच्चे डबल आर्फन भी हैं, जिनकी वालदा भी नहीं है, वो डबल आर्फन है। सिंगल आर्फन को है जिसका वालिद इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान स्वीट होम दोनों सूरतों में उसकी कफालत करने के लिए तैयार है। यतीम बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज जो मेरे साथ मेरे दाएं बाएं मेरे बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान स्वीट होम प्री कैडेट कॉलेज H9 में हम कायम कर रहे हैं उन बच्चों और बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों दोनों के लिए, जिनकी उम्र 12 और 14 साल के दरमियान है। चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित में, जहाँ जहाँ भी मौजूद है, आप पाकिस्तान स्वीट होम पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 10 फरवरी तक। सदीक पब्लिक स्कूल और पाकिस्तान स्वीट होम का मुश्तरका प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ एक वेब में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 0335 1118477। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपके बच्चों को हमेशा सलामत रखे। आपकी थोड़ी कोशिश से मैं पाकिस्तान के हर उस गली और महल्ले तक पहुँच सकता हूँ जहाँ ये फरिश्ते और परियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपका साया आप पे हमेशा सलामत रखे। खैर जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो ज़रूर पाकिस्तान स्वीट होम का ऐसा बने, ताकि जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर परी तक और फरिश्ते तक पहुँचूँ जिसका वालिद इस दुनिया के अंदर नहीं, वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मेरी मुखलिस से अपील है वो मेरा हाथ पकड़ें, इन बच्चों का हाथ पकड़ें। इंशाअल्लाह मेरा वादा है
कि ये बच्चे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। डिफरेंट फोर्सेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐवानों में जाएंगे और इंशाल्लाह इस धरती माँ का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल, यतीम बच्चे के साथ रवैया मुआशरे का अमूमन अच्छा नहीं होता, क्या आपकी इंश्योरेंस है कि यहाँ आने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ वाकई एक ऐसा सलूक होगा देखिए, ताकि उसे एहसास ना हो? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे बच्चे मुझे क्या कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है कि ये बच्चे मुझे पापा जानी कहते हैं और बस फिर कुछ ना पूछे कि पापा जानी सुबह शाम दोपहर इनके लिए क्या सोचता है। इंशाल्लाह जो भी बच्चे आएंगे वो मेरे बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी, फरिश्ते और परियाँ होंगी। आप बाकी इनसे पूछ रहे हैं ये कैसे रहते हैं। हुकूमत से भी कोई सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, हुकूमतें भी इसमें शामिल हो, ये सबका मुश्तरका प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान स्वीट होम वाइड प्रोजेक्ट है जिसमें सारा पाकिस्तान शामिल है। आप देखें कि यहाँ पे कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जो यहाँ ना आया हो, कोई ऐसा सदर नहीं यहाँ ना आया हो। तो मेरी आपसे अपील है कि सारी हुकूमतें इसमें शामिल हो। इमरान खान है भी यहाँ? पाकिस्तान जी, इमरान खान भी आए हैं, बिलावल साहब भी आए हैं, जरदारी साहब भी आए हुए हैं, सारा राजा पुरुष साहब माशाल्लाह हमेशा आते हैं, या सादिक साहब, यहाँ पे तकरीबन सारे लोग आए क्योंकि इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम पाकिस्तान स्वीट होम। पहले पाकिस्तान है फिर स्वीट होम है। जिस बच्चे का कोई घर नहीं उसका घर पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक मीठा घर है, स्वीट होम। आप देखिए इसके नाम के अंदर कितनी वसअत है। अच्छा ये बताइए कि पापा जानी का रवैया कैसा होता है आपके साथ और यहाँ पे सहूलतें क्या हैं? पापा जानी हमारे साथ बहुत अच्छे और हम यहाँ बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे एक जैसे अच्छी तालीम दी जा रही है और जिस तरह एक अमीर तरीन खानदान में देश जिस तरह तालीम हम दी है। थैंक यू बेटा। अच्छा ये बेटी से बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ? तैयबा। तैयबा, आप क्या कहती हैं, कैसी सहूलतें हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से यहाँ ये हम जो हमें घर भी नहीं मिल सकता वो हमें यहाँ मिलता है। और हम जब सदीक जाते हैं तो जब बच्चियाँ हमें कुछ बताती हैं और जब हम उन्हें बताते हैं तो वो लोग हमें हैरानी से देखती हैं कि आप लोग स्वीट होम में हो। और अक्सर बच्चियों की ख्वाहिश है कि वो स्वीट होम में आएँ, वहाँ की बच्चियाँ भी। तो अच्छा। हम प्राउड फील करते हैं कि हम स्वीट होम में रहते हैं और हमें पापा जानी। आपके बाबा का नाम क्या है? शेर खान। और मामा? मामा घर में होती है। अच्छा, तो आप अजमत खान आपके क्या लगते हैं? पापा जानी। पापा जानी, वो अजीब। आप बेटा कोई बोलना चाहोगी? माशाल्लाह ये मासूम बच्ची हैं और ये देखिएगा जी ये बच्चे हैं जो कैडेट कॉलेज का हिस्सा बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो ऑलरेडी है ना जी, अब नए आने वालों की दावत है, नए आने वालों तो ऑलरेडी मौजूद है माशाल्लाह। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।